Okay, everyone. Namaste, Saviko. Welcome back to my channel. So today we are going to talk about only MMA, mixed martial arts, and martial arts related. Today we have our special guest. He is also my student, and he begins his journey from the Kanglasa Martial Arts Academy. He's now training in Bangalore, and is now a professional MMA fighter. His record is 2-1. So we have our Niranjan Punjabam. Thank you so much, Uh, brother. My coach Roshan Iram for having me here at your podcast, and well, it's a pleasure. It's a uh, pleasure to be here with you, sitting and talking to you like this. So so I think we are meeting after how many years? Three or four? yeah, uh, Two, three, two and a half, 2.5 years. two and a half years. 2.5 years. So you have been there training and competing at your level Yes, best. So yes. how's the experience of Uh, training there and here? What's the difference? as you know, I started with Muay Thai first, Yeah, but over the time, I think I uh, had a special love for grappling BJJ, which again turned out to be MMA yeah, with yeah, the strikes, yeah. with all the ground and pound. So yeah, over time the thing created inside me, and I thought of switching from just striking to fighting in MMA. So I started my Muay Thai journey with you 2019 July. Yeah, July. July. Yeah, That when was our yeah first. our first integration after our first inauguration of the Kaglasa Yes, Park. it was very small, and we had Yeah. no mats that time. And we we were, used we were training on the tiles. yes train Yeah, on tiles. yeah, yeah, Right. So slowly we started there, and then we moved to a better place, slightly better place. yeah, yeah. Um, November, I went for my first national Muay National Muay Thai Thai in Bangalore. in Mangalore. Yeah, Yes, I think that was my first time going out of my state, out of Northeast region. yeah, yeah. So yeah, it was quite fun. And you have knocked your first opponent with a spinning elbow. Yes, yes, I had a Yeah, great knockout there. I hit him with my elbow yeah. on his. I think this part of Yeah, the. at that time I think we were training on that special move. Yes, you Like were the everything. one who was training me. That's a Also, I spinning cannot elbow. forget your Yeah. friend, Avilash other Togro. coach. Avilash Yes, Togro. Avilash Gongrum. Yeah, He is right now in Bangalore. He's training me again. yeah, yeah. So yeah. So the first bout I won by a spinning back elbow knockout. The guy, he had to go to the hospital because it was so brutal. Yeah, yeah. Second match, I think I was matched up with a Chhattisgarh guy, but again I fought hard, but they gave it to the other person, and I lost via a split decision. I So think that was you my I think you first. won the bronze medal in that fight. In that No, no medal. I didn't get any medal. Okay, okay, okay. After that fight, I trained, and I think 2 years I didn't get anything, Yeah, yeah. and that was heartbreaking for me. At some point of time, I thought I it was not my cup of tea. I thought I'll Yeah, yeah. just give it up and just normal continue a normal life. But then COVID happened. I was in home, and I was The not able destruction, to the destruction time. focus. I was not able to Yeah, focus on my life. A lot of things happened with my family, financially, mentally. So all that things, made me think I should just give it up and work. But luckily, you called me. You took me out of that zone, and here I am today. you're right. Here you are knocking out people in 60 seconds. That is the journey of the Niranjan. So yeah, that time was really the motivation for you also. For Yes, me, not only for you, for everyone, I guess. That era of Corona, people have suicide, people have done suicide, people have yes, changed their lives. So I was thinking about
the environment, the main thing is the environment. So Yes. what you are, मतलब तुम किसके साथ हो वो ज़्यादा important है. The Yes. environment is very much important. So you go to whom and the environment was totally changed. So Yes. that environment, your father mother was means तुम्हें किसी और के जगह मतलब कोई और जगह बेचना चाहता था, कोई और जगह लाइफ को सेटल करना चाहता था. Yes. But I know the potential and the talent inside you. So Absolutely. I've just called you just one more time, only for one more time, come and train. And if you like to go abroad, then it's okay, it's your decision. But only for one more time, come and train. And then you came and changed your life. Well, उस time पे मैं बहुत confused था. I was हाँ. really confused that time. Should I look after my family or should I follow my passion? Yeah, yeah, That was yeah. the challenge for that time. And guys, it's not easy. Easy नहीं था. I had to come here. He offered me the stay. Where I am today, अभी जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रहता था. ठीक है. रोशन भाई ने अपने घर में एक रूम ऑफर किया. I was staying there, right? Yeah. So वो था, and I used to work in a gym. I used to clean. I used to be a janitor. I used to clean everything, the machines, the toilet, whatever. And I used to get 3,500 rupees a month. That was my salary that time. So that's how I started. There was no bed. I had to take out the mats, interlocking mats, and use it as a blanket as well as my bedding, my cushion. So that's how I started my life hustling through it, right? So, and a lot of things happened. After that, I left the job after 6 months due to some internal issues. Then I opened up my own shop. Again, the second phase of COVID happened. I had Yeah. to close down the shop. Yeah. So, like, it was so hard for me Yeah, to life was process all like these up and things, down, to up and down, up and digest down. all these things. Yeah. Right? Something was happening, and then something happened. So I had to stop it. So that was very, 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 like, uh, what do you call it? It is hard to process for a person who had nothing Yeah, yeah. to start with. So yeah, those setbacks today turned into this fire, and you can see what is happening. So Actually, the main thing is in life you need to do some sacrifices. yes, Without sacrifice, nothing can be achieved. Yes. That's also Khabib always told in his podcast or in interview that life always needs sacrifice. So Yes. in that time when Corona was happened, if you follow the path of your mother and father, then I think you will be in another phase of life. I think. yes, that's for sure, because again, I thought of going abroad, Yeah, yeah, earning yeah. money, Yeah, yeah, doing yeah. some decent. Yeah, so you sacrifice the decision of your mother, father, and you choose your own My path. own. Yeah, 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 your own journey. And one thing is also true that you need someone in your life who can Yes, pull you off. absolutely. Yes, जो Absolutely. तुम्हारा हाथ पकड़ के जो खींच के जो तुम्हें ले सकता राह है ये दिखा हाँ, पाए. राह दिखा पाई ये इम्पोर्टेंट था. Yes, yes, that's very, very, very true. Yeah, yeah, You know, like no risk, no reward. yeah, yeah. It is like this. So अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. एंड यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत बड़ा है. हाँ. So, guys, I never imagined that people will respect me this much, but it is all my hard work and the hustle that I've done in the past, reflecting today with all the love and support by all the people. Yes. The journey of Silchar is quite, you have explained to our viewers. So after the journey of Silchar, just tell what were happening in Manipur. So you Yes, go to yes, Manipur for also. sure, for sure. So just in the simple way, just describe some Yeah. words. So again, Silchar पे I started my martial arts journey. तब मैं college कर रहा था. Guys, I'm a graduate, Bachelor of Arts. Arts, Yeah. Political Science लिया है मैंने. Yeah. So BA in Political Science complete किया. और मैंने रोशन भाई के साथ बात किया. आपको बोला मैं कि मेरे को MMA भी करना है. Mm. So
इन्होंने अपना फ्रेंड जो अभी हमारा वन चैम्पियनशिप फाइटर रोशन माइनम जी है, वो भी मेरा कोच है, इनको कांटेक्ट किया और इन्होंने कांटेक्ट करके मेरे को भेजा वहाँ पे। सो जैसे आप पकड़ लो, एग्जांपल देता हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, कल मैं घर चला गया और परसों मैं इम्फाल चला गया। सो आई डिडंट टेक टाइम टू स्टे बैक एट होम, rather I told my mom and dad, see, you told me to complete Graduation. graduation, I did, now let me follow my path. एंड इनिशियल पे मैंने बस थोड़ा सा ही पैसा मांगा है, आई थिंक 10 to 15,000, दैट्स ऑल, just to go there and settle for some time. As soon as I finished my exam, I went to home just for one day, just to say bye and pack my things up, and then I went the next day. Again, you have to get out of your comfort zone. आप comfortably रहोगे, you will not be able to work hard. Okay, because again, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इट्स हार्ड टू अचीव, नेगेटिव पॉइंट्स वेरी इजी, आप कुछ मत करो नेगेटिव शुरू हो गया। सो दैट्स द थिंग, once I went there, I contacted one of my friend, his name is Danny, he gave me a job. So what kind of job was there? Well, uh, you know this second hand clothes? Yeah, second hand course. Yes, yes. Yeah. Yes. He had a vendor, Mm. so I was a salesman. For मतलब that clothes. yes, I For had those to clothes. stand on the streets and wave and say 100, 100, 100, 100. 50, 50, 50, ले लो, ले लो. You see on the footpaths, Yeah, yeah, people do it. I did that. Yeah, yeah. Guys, any work, it's not small. Yeah, yeah. कोई भी धंधा छोटा नहीं है, जैसे हमारे SR के ऐसा भाई करे भाई बोला था. मूवी पे. So any job, right? It's not small. Work is worship. Yeah, yeah. वर्क इज वर्शिप. मैंने एक बुक पे पढ़ा था जब छोटा था, Mm. मॉरल साइंस. Mm. Yes, yes. Moral science. यस, अभी तो शायद moral science नहीं होता है. नहीं शायद. होता है, हम लोग but बचपन में बहुत हमारे होता था. हमारे स्कूल टाइम पे हमारे होते टाइम पे बहुत होता था moral Yes. science में. तो मैंने वहाँ पे ये वर्ड क्या बोलते हैं, फ्रेज पढ़ा था. Mm. वो फ्रेज अभी तक अंदर में है, Mm. बॉडी में है, माइंड में है. इसके लिए कोई भी काम मैं उठा लेता हूँ. आई यूज टू गो फॉर क्या बोलते हैं इसको, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग भी करता था मैं. Mm. पापा ने कारपेंटरी सिखाया, कारपेंटर भी था मैं कुछ टाइम के लिए. Mm. जो भी मेरे घर में दुकान है, वहाँ पे जो रैक्स है वो मैंने बनाया है पापा के साथ मिलके. मैशन, ठीक है, ये जो आप घर का सीमेंट वगैरह काम जो करते हैं, ये भी किया मैं. सो आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क. So yeah, that was the first work I did there, and I used to get paid around 300 per day. उसमें से 50 से 70 रुपया हर एक दिन का, which is my evening food break, lunch break. वहाँ पे 50 से 70 रुपया जाता था, एंड 2 दिन में मैं डालता था 100 रुपये का पेट्रोल. एक्टिवा, मैं Activa. पापा का एक्टिवा लेके आया इम्फाल से, सॉरी, जिरीबाम से मेरे घर जिरीबाम से इम्फाल तक इज क्लोज टू 220 किलोमीटर्स, 220-25. और गाइस प्लान नहीं है, इट्स नॉट वैली, इट्स तेरा मेरा हिल्स. hill. I almost slipped on the cliff and died, but I was lucky. God is like, hey, no, you cannot die. You have so many works to do. Yes. So हाँ, वो जो एक्टिवा था वो चला के आया. Mm. आज वो ही चला के आया हूँ यहाँ पे. I don't have a car, but yeah, I am happy. So that was the thing. I drove that. I used to put 100 rupees after every consecutive 2 days. तो ट्रेनिंग कैसा होता था फिर उसके बाद? ट्रेनिंग
सुबह को मैं रोशन भाई के वहाँ जाता था। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मैं रहता था वहाँ पे। आई थिंक वी हैव अ ब्रेक इन बिटवीन, फ्रॉम 6 to 10 के बिटवीन में थोड़ा सा ब्रेक रहता है। पहले स्ट्राइकिंग होता था एंड देन ग्रैपलिंग, ऐसा 2 पार्ट में सुबह को ब्रेक किया जाता था। चलता रहा वैसा ट्रेनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग जैसे मॉर्निंग नॉट रियली, इवनिंग को मैं टाइम नहीं दे पाता था बिकॉज काम की वजह से। हाँ, काम 7 से 8 बजे तक चलता था एंड उसको रैप करके सब कुछ करने के बाद 10 बज जाता था आराम से। उसके बाद मणिपुर का सबसे फेमस स्किट कोरो हेनबा उरुंगपुरेल, वो भी RMX में आता था इम्फाल में, रोशन भाई के वहाँ। उसने, जब मैं काम कर रहा था और ट्रेनिंग भी साथ में होता है मतलब बच्चे के साथ, उसने देखा मेरे को एंड ही इज लाइक, निरंजन भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आई एम लाइक, भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है, आई हैव टू वर्क, सेंड बैक होम मनी एंड आई हैव टू you know take care of my expenses here also. That's why I have to work and I'm not getting any job because the timings doesn't match. I want to train and I want to also earn some money so that I can sustain myself. तो उसने अपने पापा से बात किया, जो अगेन मेरा, अभी तो हम भाई भाई हो गए। सो अपाचे भाई, RK अपाचे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। उनका फ्लिपकार्ट में मतलब फ्लिपकार्ट का ऑफिस था इम्फाल पे, मतलब कोरियर सर्विस था। यस, कोरियर सर्विस। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कार चला लेते हो? यस चलाता हूँ। तो बोला ठीक है कल आ जाओ 12 बजे को, फिर दिखाओ। तो मैं गया उनके ऑफिस में, फिर दिखाया देखो ऐसे चलाता हूँ, ऐसा चलाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कल से काम शुरू, आपको मिलेगा 7,000 महीने का। हाँ, बट फूड अलाउंस वगैरह वगैरह सब। तो मैं सोचा ठीक है, अगर खाने का पैसा नहीं जा रहा है तो 7,000 चल जाएगा। तो किया मैंने काम बहुत, मतलब 12 बजे जाके फिर जो भी पार्सल अलॉट किया है उसको बस डिलीवर करना है। और कार में जाना है, काला भी नहीं होगा, सनटैन नहीं होगा, सॉरी सनटैन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और काफ़ी चिल था काम भी। ट्रेनिंग के बाद 10 बजे, 10:30 बजे को लौट के आए। फिर मेरे पास 1.5 घंटा रहता था। आई यूज्ड टू रेस्ट, maybe sleep for some time and then go to work again. So it was quite chill. तो उनके साथ मिलके मैंने बहुत काम किया है, मतलब फ्लिपकार्ट पे। फिर ट्रेनिंग तो भाई रोशन भाई का ट्रेनिंग है ना, तो मस्त। सो सभी व्यूअर्स को भी बताओ कि मतलब रोशन भाई तो बेसिकली ग्रैपलिंग बैकग्राउंड है, तो ग्रैपलिंग का ट्रेनिंग कैसा होता था वहाँ पे? मतलब जो इंडिया का मेन लाइन, अभी जो मेन लाइन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेन लाइन के ट्रेनिंग के साथ जो वहाँ पे हम लोग मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनिंग और मेन लाइन इंडिया में जो ट्रेनिंग मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ वाज द ट्रेनिंग बिटवीन दोस? एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, रोशन भाई सिर्फ ग्रैपलर नहीं है। He's not just only grappler. उनका स्ट्राइकिंग में काफी अच्छा है। Yeah, trains evolve MMA Yes. with lots of Muay Thai champions. Yes. Nongo, So, Seme. सोचना कि वो ग्रैपलिंग करता है, सिर्फ ग्रैपलिंग करता है नहीं, he is a great striker. He's a great striker. So yeah, ट्रेनिंग सच में बोलूं, like honestly बोलूं, मणिपुर में ट्रेनिंग जो था that was better than I mean the experience. I'm not talking about the technical stuff, Skills or whatever. हाँ, but the experience. Training over there is much more better than training Training anywhere in India. I mean, let me compare about that. Yeah. Because जो क्या बोलते हैं उसको, हवा, जो खाना, Environment. environment, Yeah. environment is really different. Yeah. मणिपुर में जो भी
वेजिटेबल वेंडर्स Yes. बेचते हैं, सब ऑर्गेनिक. it is very very organic. So you can feel that difference when Yeah, you yeah. eat and train. एनर्जी भी अलग से एनर्जी मिल जाता बहुत है. बहुत बहुत ज़्यादा. I have a PR of 100 burpees in 4 minutes 10 seconds. मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट भी किया था, बट फ़ोन चेंज करते टाइम चला गया. चला गया. तो अगेन वो सब खाने से जो बॉडी में एनर्जी मिलता है. जो एनर्जी का डिफरेंस है वो पता चल जाता है आपको. तो वैसा है. सो अभी भी अगर मेरे को चांस मिलता है कि मैं मणिपुर में ट्रेन कर पाऊँ, आई विल चूज मणिपुर. बट अगेन सबको कमाना है घर के लिए, have to take care of the family. Yeah, yeah. That is why I'm at Bangalore. Otherwise, Northeast is best. Yes, yes. Yes, सही है. And it is who we are. Yeah, yeah. So वहाँ पे रह के ट्रेनिंग करने में कोई फाइट वगैरह खेला था या क्या, मतलब जब आरएमएस हाँ, में मैं ट्रेनिंग कर. है कि मुआय थाई चैंपियनशिप आया था पहले. हाँ. कौन सा वाला, मैं भी भूल गया. और चेन्नई वाला तो नहीं, चेन्नई वाला तुम वहाँ पे चेन्नई रह के बेंगलोर में रह के क्या था. यहाँ पे था इम्फाल. हाँ यस, इम्फाल में. यस यस. फ्रेंडली समथिंग. या नेशनल जब हुआ था, मतलब हाँ. इतना बड़ा भी नहीं हुआ था, मतलब नॉर्मल नेशनल. काफी लोग आए. काफी लोग आया था. काफी लोग आए. मेरे वेट में तो काफी लोग. या. सो उसमें भी गोल जीत गया. सो आई वाज 68 इन द मॉर्निंग. मैंने भूखा रह के वेट कट कट किया. कितना आया था? 63 5 किलो सीधा कट किया था. 63 में फाइट किया. 63.5 में फाइट किया था. 63.5 का वेट कैटेगरी में मैंने, मतलब वहाँ पे तुमने मतलब सिर्फ ग्रैपलिंग का जर्नी सिर्फ स्टार्ट किया था धीरे धीरे. इसके लिए इसके लिए तुमने मुआय थाई चूज किया, मतलब खेलने के लिए. तो एमएमए का गेम तो कोई खेला नहीं था ना वहाँ पे? नहीं. उसके बाद मैं गया नेशनल्स में 2021 अक्टूबर. फॉर स्ट्राइकिंग एमएमए और व्हाट? स्ट्राइकिंग एमएमए एंड एमएमए बोथ. हाँ. ओके. गामा के अंदर जो खेला. गामा के अंदर. ओके. AIMMF का हाँ. जो नेशनल फेडरेशन है. स्ट्राइकिंग में गोल मिला था या क्या मिला था? स्ट्राइकिंग एमएमए में मैंने गोल लिया था. और एमएमए में अगेन मेरा दोस्त भी था वहाँ पे जो आरएमएक्स से ट्रेन कर रहा था. इसलिए रोशन भाई के साथ हम बात करके उन्होंने बोला भाई कर दो, मतलब स्टेप ऑफ. मैंने स्टेप ऑफ किया so that he can win. Yeah, you have already got the gold medal in हाँ. striking MMA. So रोशन भाई तो एमएमए का उसको दे दो जी. कि वो स्ट्राइकिंग में नहीं खेल रहा तो था. हम दोनों गए थे एम्स्टर्डम पे. हाँ. क्योंकि वो जो नेशनल चैंपियनशिप था वो नॉट ओनली नेशनल चैंपियनशिप था, इट वाज सिलेक्शन फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स टू. तो गए थे हम एम्स्टर्डम में, मौज किए, फाइट खेले. मैं जीत नहीं पाया. माय फर्स्ट बाउट वाज विद सम जॉर्डन गाय. ही वाज अ प्रो फाइटर. सो गामा में 5 प्रो फाइट्स करने से भी आप 5 प्रो फाइट्स के अंदर आप हो तो रिकॉर्ड होने से खेल पाते. हाँ, खेल सकते हो एमेचर्स. तो वो काफी टाइम से कर रहा था एंड इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस. गाइस, आई वाज डिफेंसिव फाइटर टिल देन. जब मैंने उसके साथ एनकाउंटर किया तो मैंने अपने आप से बोला आप डिफेंसिव रहोगे नहीं जीत पाओगे इस गेम में. You have to be aggressive and defensively sound. So my fighting style is that I am very 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 aggressive, but I am defensively sound also. और जब गोल मिला था वो कौन सा ईयर में था? एशियन पैसिफिक. उसके लिए भी फिर से नेशनल खेला था. यस. फिर से गोल. वो जब वो आरएमएक्स में था तब या तब. ओके. सो आफ्टर एम्स्टर्डम से लौटने के बाद ही मैंने रोशन भाई से रिक्वेस्ट किया कि रोशन भाई मेरे को खेलने के साथ साथ पैसा भी कमाना है. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बेंगलोर भेजता हूँ. तो उन्होंने कांटेक्ट करके बेंगलोर भेजा. कोई कॉम्बैट विशाल सेगल सर के अंदर. तो गया वहाँ पे. फिर
उस टाइम पे कोई मैं कुछ नहीं था, हम्म, कुछ नहीं था, मतलब द बिजनेस वाज डाइंग, हम्म, एमएमए बिजनेस वाज डाइंग। तो मैं गया, मैंने सबको मुay थाई क्या है सिखाया स्ट्राइकिंग, प्योर और स्ट्राइकिंग। रिवाइव किया। हम्म, बेंगलोर में मतलब वहाँ किसी को मुay थाई का मालूम नहीं था, मतलब मुay थाई क्या है मालूम था, थोड़ा पर थोड़ा, लाइक नॉट प्रॉपर्ली, नॉट प्रॉपरली। नॉट प्रॉपर्ली, नॉट एज यस वी डू। एज वी डू, यस। तो एटलीस्ट कोई में जो थे उनको पता नहीं था। तो मैंने पूरा बिजनेस को रिवाइव किया। मेरा एक सेशन में मिनिमम 25 to 30 पीपल प्रेजेंट होता था। नोटिस का भी था वहाँ पे जब था 35 था। असम का था वहाँ पे, कपल्स आते थे ज़्यादातर, आई थिंक नॉर्थ नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड, हरियाणा उस तरफ का था। सब आईटी वाले, सब आईटी मतलब वहाँ पे काम करने वाले हाँ, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जॉब्स। yes, but again they also want something new in Yeah, their yeah, life, yeah. something interesting. इसलिए they chose him. And I was lucky enough to give them the great experience. फिर वहाँ पे जाके फिर स्ट्राइकिंग में मेगा नेशनल खेला। Yes, उसके बाद हाँ, so I was training there, and again ट्रेनिंग किया। हमारे सीनियर्स ने ही ज़्यादातर ट्रेनिंग दिया है हमको, कोई भी, rather than the head coach. सीनियर्स थे आशुतोष, सुरबाला, और दोस्त लोग भी थे, उन्होंने ज़्यादातर ट्रेनिंग दिया है। मतलब एमएमए का स्ट्राइकिंग, Striking, MMA, MMA. जो भी हो, अपस्किल। उसके बाद मैं गया अपना नेशनल्स सिलेक्शन के लिए, वो भी एशिया पैसिफिक। वो था आपका दिल्ली का प्रगति मैदान। हाँ, प्रगति मैदान। वहाँ पे भी मैंने मेरा हुआ था 4 मैच, सबको मारा। एक डिसीजन विन था या क्या सब? नहीं क्या नहीं, होता? मेरा ज़्यादातर नॉकआउट से होता है, ज़्यादातर नॉकआउट से होता है, इधर स्ट्रेट नॉकआउट और टीकेओ। 2 बार गिर के फिर काउंट होता है वो। सो सब एक बार व्यूअर्स को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइकिंग एमएमए एंड प्योर एमएमए, वो एक बार बता दो। अगर आप वुशु खेलते हो, वुशु खेलते हो तो उसमें टेक डाउन अलाउड है, मुसु संडा। सांडा। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मुसु संडा, मतलब लॉक वगैरह ग्रैपलिंग का वो अलाउ नहीं कर सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई जैसे आप क्लिंच में हो और आपने गिलेटिन पकड़ लिया, अगर आपने गिलेटिन पकड़ लिया तो आपके पास 30 सेकंड्स है उसको खत्म करने में। यू कैन नॉट स्विच द पोजीशंस। एक बार पकड़ लिया उधर ही खत्म करना है। ओके ओके। एक बार खत्म करके आपने अगर स्विच किया, नॉट अलाउड। यस, इट्स नॉट अलाउड। थोड़ा सा ये है, उसको स्ट्राइकिंग एमएमए या फिर मॉडिफाइड एमएमए भी बोलता है। ओके ओके। तो वही 30 सेकंड्स में आप खत्म किया तो अच्छा है, नहीं किया फिर भी आपको पॉइंट्स मिलेगा, बिकॉज यू हैड दैट सबमिशन। मतलब ओनली गिलेटिन इज अलाउड, रियर नेकेड चोक वगैरह कुछ अलाउड नहीं, आर्म बार वगैरह। अगर आपने क्लिंच किया, हाँ, नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने अगर स्टैंडिंग ये ओके ओके ओके, आर्म ट्रायंगल मार दिया, ओके ओके, तब आप कर सकते हो। मतलब स्टैंडिंग में अलाउड है, नीचे करके अलाउड नहीं है। नीचे करके अलाउड है। हाँ। अगेन दिस इज वेरी ट्रिकी। अगर आपने पकड़ के नीचे गिरा तो अलाउड है, पकड़ के नीचे गिराया तो अलाउड नहीं है। ओके ओके ओके। ऐसा है, थोड़ा ट्रिकी है। मतलब पकड़ के आप टेक डाउन नहीं कर सकते हो, नहीं। रेसलिंग जैसा। नहीं, यू कैन टेक डाउन, हाँ। पर उसमें यू कैन नॉट सबमिशन नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। ओके ओके, मतलब थोड़ा वुशु के जैसा सामान है, सिर्फ उसमें थोड़ा हम लोग Yes. चोक वगैरह डालना, मतलब डाल सकते हैं। यस, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। बट पॉइंट्स ज्यादा स्ट्राइकिंग में मिलता है, गिराने में नहीं मिलता, स्ट्राइकिंग में मिलता है, स्ट्राइकिंग। बिकॉज इट्स स्ट्राइकिंग। या फिर वहाँ से गोल्ड मेडल मिला, फिर एशिया पैसिफिक के लिए गया, हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा 3 फाइट्स हुआ।
काफ़ी अच्छा था। पहला जो ओपोनेंट था, ही वाज आल्सो आई थिंक आई रिमेंबर हिज लास्ट नेम। Oh, I remember his name. His name is Serghazi Hmm. Sakuyev. He was from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. He was from Kyrgyzstan. Hmm. He was a Eagle FC, जो खबीब का अभी तो नहीं है, Hmm. खबीब का पहला Hmm. Organization the promotion, fight promotion. या Hmm. फाइट प्रमोशन है, Hmm. वहाँ का चैंपियन था। He had a belt. वाह. उसको मैंने हराया। Hmm. फाइनल उसके साथ खेला था ना, नहीं नहीं, that was my first. फर्स्ट मैच. फाइनल जो खेला था वो किसके साथ था? वो भी तो मतलब रशियन टाइप लुकिंग बंदा था ना, फाइनल जो खेला था वो कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान. इब्राहिम, इब्राहिम. उसका नाम अभी भी याद है, इब्राहिम कुछ था, but I just remember Yeah, इब्राहिम। he somehow similar looks like कभी के साथ थोड़ा सिमिलर हाँ लुक, हाँ। कमजल लोग के जैसा. So, yeah, और मेरा जो सेमीफाइनल्स था वो तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट. तिमोर या. वहाँ का था। इवान दे लूडस उसका नाम था, इवान्स दे लूडस, बहुत लंबा नाम है उसका। फाइट के बाद बहुत रिस्पेक्ट दिया, इसलिए नाम याद है, बिकॉज वी बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर द फाइट। एंड देन गोल मिला, इंडिया गोल का नाम, मिला, इंडिया का नाम रोशन किया. नेशनल एंथम बज रहा था पूरा इंडिया का इट फ्लैग. वाज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। Yeah, इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने अभी तक पिन करके रखा है। देयर इज अगेन, पुराना हो गया है, बट स्टिल व्हेन आई reopen it, re-see it, I feel proud of myself, obviously, also of that national flag. You know, it's like a occasion. आप ऐसे ही बजा के नहीं कर सकते, सबके सामने ऐसे ही नहीं बजा सकते। It's an honor. So like I feel honored when I look to myself, you know, on my phone, staying there and representing our country, representing the country, respecting the getting the gold national medal. anthem. Yes, सब हम लोग का फ्लैग सबसे ऊपर था. Yes. वो प्राउड मोमेंट तो Yes. लाइफ में Again, बहुत कम लोग को I नसीब होता है. felt, I'm talking about myself. I felt very, very, very proud of my mom and dad who raised me this way, and my coaches who, you know, guided me through this path. फिर उसके बाद फिर से वन मोर स्ट्राइकिंग एमएमए खेला था शायद नेशनल. हाँ, उसके बाद वहाँ पे भी गोल मिला था. यस, फिर उसके बाद फिर से रिप्रेजेंट किया हुआ. इंडिया में मैंने जब भी मैंने गोल जीतना शुरू किया है एमेच्योर लेवल पे, तब से मैं सिल्वर ये सब नहीं, ओनली गोल स्ट्राइकिंग में एटलीस्ट. या आफ्टर दैट यू प्रेजेंट कहाँ पे खेला था? बैंकॉक में शायद, वो थाईलैंड में खेला था ना. वो वर्ल्ड्स के लिए गया था. हाँ, बैंकॉक में वहाँ पे क्या ब्रॉन्ज वहाँ पे ब्रॉन्ज आया था. चाइनीज फाइटर के साथ फाइट किया था ना. Yes. या ही वाज वेरी गुड. He was a southpaw. या और उस टाइम पे मेरा साउथपॉ ऑर्थोडॉक्स जो ओपन स्टांस का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा बाकी था, तो वो भी स्प्लिट डिसीजन था. इट वाज नॉट इजी फॉर हिम टू डील मी. या And so it was like 10-9 like yes, that. yes, it was a split decision. So I mean, अच्छा था. He was अच्छा था, good. बहुत अच्छा था. He वो was फाइट good. वो फाइट देख I के respect him. He was good. yeah, I was also means being proud. उसका जो बॉक्सिंग था, that was slightly better than mine. yeah, अच्छा खेला. अच्छा वो एकदम वो फाइटर बढ़िया खेला था. मतलब मैं पूरा एकदम फुल फोकस कर रहा था. Yes. तुमने भी टक्कर दिया, 100% टक्कर दिया उसको भी. कि थोड़ा मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस का लेवल, एक लेवल भी होता है ना इंसान Yes, का. yes. जब तो फिर उसके बाद डायरेक्ट एमएमए. Yes. फिर उसके बाद कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं. तो guys, आप एक तो जीतते हो हाँ. और दूसरा आप सीखते हो. You never lose. You learn. Either you learn or you or you win. And that's my mindset, and that's what I will suggest you guys also to have that kind of mindset. आप हारते नहीं हो. You don't lose. You learn from your mistakes.
So what is the journey? मतलब फैंस बहुत लोग, हम लोग का व्यूअर्स लोग बहुत लोग होगा जो बेसिकली फ्रॉम स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड बहुत लोग होगा। अभी तो स्ट्राइकिंग बहुत फेमस हो रहा है, किक बॉक्सिंग हो गया, K1 स्टाइल हो गया, मुay Yes. थाई भी बहुत फेमस हो रहा है अभी होल इंडिया में, बिकॉज पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम इंडिया आर ट्रेनिंग इन थाईलैंड doing Muay Thai. It's very much Yes. famous nowadays. So everyone knows what Muay Thai is. So what was your journey from switching striking to grappling? मतलब ये जो grappling का art है, जो फॉर एग्जांपल बीजेजे रेसलिंग जितना भी है, उसको एडॉप्ट करने में अगर आप स्ट्राइकिंग के बैकग्राउंड से हो तो कितना टाइम लगता है और ट्रेनिंग कैसा करना पड़ता है, वो एक बार सजेस्ट करो लोगों को। Honestly बोलूँ तो I was very very desperate. मैंने 4 days नॉटिस में एक फाइट एक्सेप्ट किया था रेहान लुल्ला के साथ. ही इज अ इंडो चाइनीज. वो it was I think he was born in India but रेस इन इंडोनेशिया, yeah, raised in Hong Kong. हांगकांग, हाँ। तो वो हांगकांग बेस्ड फाइटर बोलता है अपने आप को. I think he had a belt, WBC belt, and he is, I think that time he was a wrestling champion from Hong Kong. उसके साथ फाइट हुआ था 66 kg में, फेदरवेट में. तो 4 दिन का नोटिस था. आई वॉज चिलिंग, खाना वाना भरपेट खा रहा था. तो मेरे को नोटिस आ गया कि एक फाइट है. हमारे कोच ने बोले, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा कोच बोला. फिर उन्होंने बोला तुम इसको भी नहीं मार सकता क्या. सो थोड़ा ईगो में ले लिया, विच अगेन यू शुड नॉट डू इट. इफ यू डोंट हैव गुड प्रिपरेशन and it's not wise to take up a fight in short notice. तो मैंने ईगो में फाइट एक्सेप्ट कर लिया, एंड वो भी 66 kg में. It's not your fight weight. नो, अगर मैं प्रो खेलता हूँ तो मैं 61 kg में खेलता हूँ. एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रो. जो मेरा प्रो रिकॉर्ड में जो बीच में 1 है ना लॉस का, वो यही वही फाइट फाइट है. है। तो अगर आप पास में देखोगे जो फाइट था, वहाँ पे आई हैड ऑलमोस्ट जीरो स्किल्स इन ग्रैपलिंग और MMA ग्रैपलिंग. मैंने आउट स्ट्राइक किया उसको. ही ऑलमोस्ट आई ऑलमोस्ट नॉक्ड हिम आउट. वो रॉक हो गया था. बट अगेन कुडोस टू हिम, ही हैड अ गुड गार्ड, गुड रिकवरी. इसलिए तो WBC बेल्ट में आसान नहीं है. बट he has also more grappling skills than you. यस, बट अगेन उसको पहला स्ट्राइकिंग में एटलीस्ट, ग्रैपलिंग में ही हैड बेटर स्किल्स. Yeah. इसलिए आई थिंक उसने पॉइंट में जीत लिया. वो भी स्प्लिट डिसीजन ही था. कोई भी फाइट ऐसा नहीं है कि आप TKO हुआ या KO हुआ, कोई हाँ, ऐसा और ऐसा यूनानिमस भी हुआ है. हाँ. बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेम टू सेम या फिर उससे ज़्यादा अच्छा तक करूँ. वो मेरा माइंडसेट है. तो दैट वाज माय फर्स्ट लॉस, एंड दैट वाज द लर्निंग दैट आई गॉट कि बॉस यू हैव टू गो एंड लर्न ग्रैपलिंग. दैट इज व्हाई आई वाज डेस्परेट टू लर्न. अगर मेरे को MMA करना है तो मेरे को सीखना है ग्रैपलिंग क्या है. जैसा तुमने पहले जो थोड़ा देर पहले कहा था, either you learn or you win. Exactly. But That that was loss, not my loss. yeah. It was my learning. indication yeah. that you go and learn. Yeah. So मैंने हाँ. वो चीज को एक्सेप्ट करके I moved on Grappling start and किया. I moved out of fight for almost 1.5 years. And वो जो 1.5 years में अपने आप को दिया, that was the time, I mean that is the time that reflected in my future fights, which obviously is grappling. Yeah. मतलब इस Obviously is grappling. मतलब इस फाइट जो अभी फाइट रिसेंट फाइट हुआ था उसके पहले फाइट में Yes. लोग मतलब देख पाया तमिलनाडु का ओपोनेंट था WDS
13. Yes, I was also shocked by Oh. by your performance, but I was thinking that Niranjan will knock him out in like in first or second round. उसको अगर स्ट्राइक करता तो बहुत आसान, Yeah, but you are doing only that पर मेरे को takedown. दिखाना था Yeah, कि yeah, yeah. So you have to prove that you are not only a striker, but you have yes, become a full MMA fighter. yes. Like, So, I mean, that was the whole idea behind. I mean, that was my game plan कि लोगों को प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं भी एक एमएमए फाइटर हूँ. तो जो लैक करता था उस गेम को ही दिखाया. so striking से grappling स्विच करने में इतना तकलीफ तो नहीं हुआ. तकलीफ नहीं हुआ बिकॉज अगेन आई वाज डेस्परेट. Yeah, yeah, yeah. आई वाज डेस्परेट. ऐसा नहीं कि कोच ने एक चीज बता दिया, हाँ हो गया, ऐसा नहीं. उन्होंने एक चीज बताया, मैंने उस चीज को रिसर्च किया, यूट्यूब में देखा, फिर दूसरे दोस्त को पूछा, फिर इधर पूछा. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यू टू क्या बोलते हैं, बाहर खेलने जाता हूँ तो उनका इंस्टाग्राम एक्सचेंज होता है, नंबर्स एक्सचेंज होता है. तो मैं पूछता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का दोस्त है, थाईलैंड में दोस्त है, बैंकॉक में, फिर लेबनान में है, ऐसा करके लाइक I just compare all the skills. Yeah, yeah. So the main thing is if you work hard, then you can do anything. Yes. You can adapt anything. Yes. अगर आप MMA fighter हो, you have to be dynamic and versatile. Yeah, yeah, yeah. आज मैंने वो mindset accept करके आज ये सब हो पा रहा है. नहीं Yes, तो yes. if again I don't like to learn southpaw, but I have to Yeah. because it is important. Yes. Now I know- modern MMA में बहुत important है. Exactly. Yes, If you're in the modern MMA, जो अभी मेटा है, Yeah. that is stance switches and attacks कैसा होता है, दूर कैसे खेलना है, pocket fighting, how you fight, how do you like fight in a distance. So one more thing. अगर बहुत लोगों का मतलब ये confusion है कि MMA में ग्रैपलर ज़्यादा विन करता है स्ट्राइकर से. So तुम्हारा ये क्या ख्याल है, मतलब when you Not- fight कि मतलब अगर वो dominant grappler है, he belongs to wrestling or he belongs to BJJ, then he can easily defeat from the Muay Thai background or kickboxing background. So तुम्हें क्या लगता है ये? That is not totally true. हाँ. अगर आपको MMA ग्रैपलिंग आता है, वो टेक डाउन के लिए आ रहा है, अगर आपको टेक डाउन का डिफेंस पता है, प्रॉपर डिफेंस मालूम Yes. होना चाहिए. तो आप स्ट्राइक कर सकते हो. Yeah, yeah. मैं कौन सा फाइट है नहीं बोलूंगा, बट एक बंदा टेक डाउन के लिए गया, उसने डिफेंड किया, उसने बस यहाँ से शॉट्स देना शुरू किया, नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, स्टिल दैट इम्पैक्ट कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ डैमेज. So if you know how to manage your body and know the balance of body weights, it's easy. तो वो आपको मतलब आपका जो कोचेस है जब सिखा रहा है वो सब सिखाना पड़ेगा. So modern MMA में ऐसा कुछ नहीं है कि No, हम उसको you want एंटी to be- ग्रैपलिंग बोलते हैं, हाँ, एंटी रेसलिंग बोलते हैं, एंटी anti-grappling. ग्रैपलिंग. So ऐसा कुछ नहीं है कि आपने देखा होगा क्या नाम था उसका, UFC फाइटर यस, कौन सा? बिलाल के साथ जो फाइट किया था, बिलाल मोहम्मद के साथ बिलाल मोहम्मद के साथ हाल ही में जो फाइट किया था, भूल गया मैं भी. दी ऑस्ट्रेलियन फाइटर. हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर. यस यस, बिलाल को जो हराया था Yes. वेल्टरवेट डिवीजन. यस, वो सब उसको हम बोलते हैं एंटी ग्रैपलिंग, एंटी रेसलिंग. उसमें आपका स्क्रैम्बल्स रहेगा, उसमें आपका स्क्रिमेज रहेगा. स्क्रिमेज ये मेरा कोच जो अभी मैं काइजन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उन्होंने ही सिखाया. ये एक्चुअली मतलब वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर इज एलेक्स पेरेरा. हाँ. सो वो भी बहुत अच्छा से डिफेंस करता है, मतलब जितना भी ग्रैपलर के साथ फाइट किया है उसने, हाँ. नो वन हैज एबल टू टेक हिम डाउन. सो जितना लास्ट टाइम जो उसके साथ फाइट हुआ था दागिस्तानी फाइटर के साथ, तो उसने भी तो अंकलाएव उसने भी तो स्ट्राइकिंग में जीता था. हाँ. सिंगल टेक डाउन वो ले नहीं पाया था वो दागिस्तानी फाइटर, बट kudos to him, he has also done a great level of striking.
बहुत अच्छा से काउंटर किया, डिस्टेंस मैनेज करके, पुश किक टिप मार मार के डिस्टेंस मैनेज करके, और प्रेशर Yes. दे रहा था। Yes. एलेक्स पेरेरा का तो प्रेशर जब दे रहा है, बैक बैक जब फाइट करे वो थोड़ा मतलब उसका वो लूप Yeah, होल्स है। he fights well when he हाँ, presses या someone. वही है। तो अंकल आपने गेम प्लान बहुत अच्छा किया था। Yes. दिस वन इज ट्रू दैट ऑल द व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि इफ यू बिलोंग टू ग्रैपलिंग बैकग्राउंड दैट यू हैव टू मींस यू कैन डोमिनेट इन एवरी फाइट। मतलब स्ट्राइकर्स को आप लोग डोमिनेट कर सकते हो, ऐसा मतलब मॉडर्न एमएमए में अभी ये कुछ नहीं है। बिकॉज मॉडर्न एमएमए एवरीवन इज ट्रेनिंग इन देयर बेस्ट लेवल। Yes. एवरीवन इज, जो स्ट्राइकर्स है वो लोग भी ग्रैपलिंग में बेस्ट लेवल दे रहे हैं, जो ग्रैपलर्स है वो लोग भी बेस्ट लेवल स्ट्राइकिंग में दे रहे हैं। UFC का बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग है इलिया टपोरिया। Yes. Yeah, he I also love he him. he also belongs to grappling background. मैं पर अभी वो सिर्फ नॉकआउट ही दे रहा है। Yes. नॉकआउट के तो बिना वो कुछ नहीं देते हैं अभी। मैं भी उनका वीडियो ज्यादा देखता हूँ Yeah, इलिया yeah. का, because I my left hook like Alex Yeah. Pereira. Yeah. I have a very strong left hook, Mhm. left side, Mhm. I will say. Mhm. When I arm wrestle, Mhm. with my right side, I cannot win from anyone. Mhm. Weak है, Mhm. but from my left, I am quite strong. Mhm. इसलिए मेरा left hook बहुत, Mhm. I mean, most of the knockouts that I've done Mhm. is from this. Mhm. On my recent fight also, Mhm. check hook के साथ साथ वो हो गया था out, but again I helped with my right overhook. Yeah, yeah. फिर नॉकआउट दे दिया। Yes. Guys, honestly speaking, मैं करण को नॉकआउट करने का प्लान नहीं था इतना जल्दी, Mhm. but maybe because his chin was too high, Mhm. uh, he got knocked out. But I was not trying to knock him out that instant. I wanted to have at least 2 rounds. And he wants to damage him properly. Yeah. Yeah, I want to show my game. Yeah, yeah. He was telling I will put it that way. Yeah, yeah. He was telling in pre-fight conference that you are not a striker anymore, so your striking is not that good. Like that, he was telling in the media Yeah. audience. So again, please don't stay in a delusion. I started with striking. I am a striker, and I have whatever fame I got is from striking. I am a striker. Grappling, yes, I'm doing it. I'm pursuing it. You will see it more. Now it's time for MMA, right? For me to shine in MMA. Yeah. You'll be seeing quite a lot in 61 kg. Yeah, your journey of MMA is just begun. It Right, is, Maya. it is, It's just a it's beginning a part. start. It just started. So one more question. जब आप लोग मोई थाई हम लोग जो करते हैं वो लोग का स्ट्राइकिंग, मतलब मैं ज़्यादातर देखता हूँ एमएमए में स्ट्राइकर्स ज़्यादातर किक बॉक्सिंग का बैकग्राउंड से मतलब ज़्यादा होता है, मोई थाई का बहुत लोग खेलते हैं। तो विच मतलब स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड इज रियली हेल्पफुल इन एमएमए, मतलब किक बॉक्सिंग और मोई थाई, मतलब लेग्स और हाथ मिला के। बॉक्सिंग तो अलग हो गया, बॉक्सिंग सिर्फ हाथ का खेल है, मतलब लेग्स और हाथ मिला के विच वन विल बी गुड इन एमएमए, किक बॉक्सिंग और मोई थाई? इसमें मैं बायस नहीं होऊंगा. Fusion of all three. Why? Muay Thai का keeps good for keeping away people. कराटे का जो up kicks, right? और Muay Thai में भी question mark kick है, Taekwondo में question mark kick है. So एक आर्ट सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता. यस यस, इसलिए MMA है. सो हर एक आर्ट का थोड़ा कंपोनेंट्स. यस, जो इफेक्टिव यस, एक बेटर स्ट्राइकर बनेगा. फॉर एग्जांपल, आप क्लोज रेंज में हो, you want to strike rather than grapple, you can use your Muay Thai elbows, Muay Thai clinch, Muay Thai knees. दूर है, बॉक्सिंग करना चाहते हो, यस यू हैव योर बॉक्सिंग. दूर है, आप किक करना चाहते हो, you want to just check and then run away, आप taekwondo स्टाइल टच स्पारिंग जैसा, टच कॉम्बैट जैसा कर सकते हो. अगर आपको डैमेज देना है, मुआय थाई किक करो. So again, it's not just one sport, it's about
हाउ यू मिक्स अप ऑल द स्पोर्ट, जैसे डच या किक बॉक्सिंग उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है, बॉक्सिंग का फुटवर्क बहुत अच्छा है, आप वो सब डाल सकते हो, एंड दैट्स हाउ आई फाइट. मतलब If you आपको notice, आपको स्ट्राइकर बनना है तो हाइब्रिड स्ट्राइकर बनना पड़ेगा. hybrid fusion of everything, हम्म, ये बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद यही मतलब एमएमए में हेल्प होता है. Yes, and the power to adapt, हम्म, adapt, adapt, accept करना है अपने आप को और adapt करना है. हम्म, I don't like being southpaw, हम्म, but I adapted because yeah, I need to learn yeah, how to deal with southpaw and how हम्म, I deal with other people in हम्म, southpaw. स्विस स्टांस फाइटिंग अभी बहुत मतलब मॉडर्न एमएमए में बहुत Very, इम्पोर्टेंट, very, बहुत very इम्पोर्टेंट. new thing या and very important. स्ट्राइकर. Jack, okay, UFC fighter का नाम हाँ जैक मैंडेला, हाँ हाँ. जेडीएम, हम्म, उनका फाइट देखना, हम्म, उनका ट्रेनिंग देखो, फॉलो करो, हम्म. बहुत अच्छा है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द स्टाइल दैट आई एम लर्निंग. ओके ओके. सो और एक थिंग, हाँ और एक चीज़ हम लोग का व्यूअर्स को मतलब आप बोलो, सजेशन दो. ये देखो फाइट में हमेशा हम लोग वेट कट करते हैं. वेट कट इज द मोस्ट मतलब ब्रूटल पार्ट एक Yes, फाइटर के लिए. yes. That is ट्रेनिंग the में first fight I या will say. ट्रेनिंग में हम लोग यस वी कैन ट्रेन एवरी डे, वी कैन डू ऑल द थिंग्स इन ट्रेनिंग, बट द मेन हार्ड वर्क इज द वेट कट. Yes. सो हाउ डू यू वेट मतलब वेट कट आप कैसे करते हो और आप कैसा मतलब हैंडल करते हो, कितना किलो कट करना पड़ता है फॉर बीइंग ए प्रोफेशनल फाइटर, ये सब थोड़ा सजेशन दो. First things first, strength and conditioning, nutritionist, अच्छा वाला ढूंढ के रखो आप, and please invest on yourself. इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल फाइटर. Yes, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है. यस. वो आपको बताएगा इतना कार्ब्स लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, कार्ब्स नहीं लेना है, फैट्स लेना है, जो भी आपको चाहिए, और वो प्लान करेगा आपका एसएनसी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, कि इस दिन को ऐसा करना है और वीक में इतना ही करना है. आप अगर नहीं करोगे, ओवर ट्रेन करोगे, विल गेट वीक, आपका मसल, आपका फैटिग हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, फटीग होके. तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू, अगेन आपके पास नॉलेज है, एंड इफ यू नो यू कैन बी योर ओन कोच. आपके पास नॉलेज नहीं है, देन प्लीज कीप अ प्रॉपर प्रोफेशनल कोच. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खर्च करना ही पड़ेगा. दिस स्पोर्ट इज लाइक दिस, इट्स नॉट अ वेरी cheap sport. It's very expensive. यस यस. हम तो इंडियन हैं, हम जुगाड़ करते हैं, इसलिए हम लोग टिक पा रहे हैं. आप बाहर देखो, कोई भी फाइटर का एसएनसी कोच रहता है, न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, लाइफ कोच रहता है. आपको डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है. मैं तो भाई फूडी हूँ, और मैं 20 दिन में कट करना शुरू कर देता हूँ. सो इफ आई हैव अ फाइट, आई नीड एटलीस्ट 3 weeks टू कट माई वेट. नॉर्मल वेट कितना में रहता है? मेरा वॉकिंग वेट रहता है 71 क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ. फिर 10 किलो पूरा एकदम कट करके फिर 61 में लाके. यस यस. सो उसका प्रोसेस रहता है, मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ, बट वही 20 दिन में मैं कट करता हूँ. इसके लिए गुड कोच, प्रॉपर प्रोफेशनल Yes. कोच Yes. और न्यूट्रिशनिस्ट रहना चाहिए. Very important. Yes. And they should know what you are doing. यस. तो मतलब ये सब चीज़ ज़्यादातर एमेच्योर फाइटर को नहीं करने से. Amateur में why? Because amateur में आप, again guys, I have more than 60 fights till now. Amateur, professional सब मिला. तो amateur में आप एक्सप्लोर करो कौन सा वेट आपके लिए अच्छा है. ज़्यादा वेट करने से, कट करने से क्या होता है, थक जाते हो, नहीं खेल पाता है. और इसलिए तो मैं आई हैव अ वेरी स्मॉल फ्रेम. मेरा फ्रेम स्मॉल है. आई एम जस्ट 5'6" थोड़ा ऊपर है, 5'7" पहुंचने के लायक आसपास या आसपास. तो
अगेन मैं नोटिस जीन्स हम्म, इतना लंबा नहीं है, हम्म, बट मैं जब फाइट करता हूँ 66 में, हम्म, 6'5'9", हम्म, सॉरी 5'11", हम्म, 6, ऐसा बंदा आता है जो रीच उनका बहुत ज़्यादा है, हम्म, तो उनके साथ फाइट किया है हम्म। मैंने। 65, बैंटम वेट में, नो, फेदर वेट में। फेदरवेट। हम्म, फेदरवेट मेरा नहीं है। हम्म, लोग बोलते हैं मेरा बॉडी देख के, भाई यू कैन कट डाउन टू फ्लाईवेट, हम्म, 57 तो किलो। वैसा फ्रेम है मेरा, हम्म, फिर भी मैं 61 में रह रहा हूँ, हम्म। तो खाना बहुत पसंद है, शायद फ्लाईवेट में जाने से शायद कमजोर फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा यस कमजोर। यस। बॉडी का थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर भी चाहिए, मतलब यस, थोड़ा तो जेनेटिकली स्ट्रांग हो। यस, वो भी थोड़ा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर लॉस कर दोगे तो मतलब फाइट में बहुत बहुत एनर्जी लॉस होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पावर भी अगेन अगेन वो पावर भी नहीं मिलता। एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है। बहुत लोग का एग्जांपल है, बहुत हाँ, बहुत बहुत, एक दो ही नहीं, बहुत बहुत लोग का बहुत देखा ज़्यादा। है। तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा, वो ट्रायल होगा आपका एमेचर्स, एमेच्योर्स में। क्योंकि वहाँ पे यू कैन रिस्क हम्म, योर रिकॉर्ड, हम्म, कुछ नहीं बोलेगा। हम्म, प्रो में आप एक बार आते हो, यू कैन नॉट रिस्क। यस। जैसे मैंने एक गलती, मेरा पहला फाइट में किया था, अभी वो लाइफ टाइम ही रहेगा वो। लाइफ टाइम रहेगा, वही वो जाएगा नहीं। वही है, एक गलती भारी हो गया। हम्म, अभी जितना भी एमेच्योर है आप लोग भी वो गलती मत कीजिए, ईगो में फाइट मत लो। कम से कम थोड़ा सोच समझ के, अच्छा कोच भी चाहिए, इसलिए अच्छा यस, कोच, अच्छा एडवाइस करने वाला कोच। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। इफ योर कोच एब्सोल्युटली, इज टेलिंग दैट यू कैन डू, आप भी ईगो में आ जाते हो। और इफ योर कोच इज गुड एंड योर कोच इज गाइडिंग यू इन परफेक्ट वे, देन सब कुछ मतलब ठीक होता है। इसके लिए गुड कोच भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, If you are in MMA journey, good coach, good environment, good team, that's the best way to मतलब train MMA, और तुम्हारा फ्यूचर कैसा मतलब होगा, पार्ट फ्यूचर का पार्ट कैसा होगा। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वी बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट एंड वी आवर जीन्स हैव द ब्लड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट का वॉरियर्स और जितना भी फाइटर्स है नॉर्थ ईस्ट से जितना भी निकलता है, उन लोग का और जो जितना भी हम लोग इंडियन में इंडियन का फाइटर्स है, डिफरेंस क्या रहता है? तुम तो एक्सप्लोर बहुत किया हुआ है, तो डिफरेंस क्या रहता है हम लोग का और उन लोग का फाइटर्स? एक दो डिफरेंस ही तभी बोलो, हो जाएगा। तभी वो जो ईगो है ना, हाँ। काम आता है। ओके। हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि हाँ हम वॉरियर्स हैं, हाँ हाँ। तो जब आप नीचे गिरते हो, हम्म, तो आपका वो जो ईगो है ना, वो हम्म, पैदा होता है, हम्म, बिल्डअप हो जाता है, हम्म, सॉरी पैदा नहीं, जाग जाता है। जाग जाता है। तो अपने आप को बोलता है मैं मर जाऊंगा, हम्म, लेकिन कभी गिव अप नहीं करूंगा, हार नहीं हम्म, मानूंगा। हम्म, जिगर, हम्म, जिगरा, हम्म, मेरे को लगता है जिगरा थोड़ा ज्यादा है, हम्म। बस दैट इज द ओनली पॉइंट दैट ओनली मेक्स डिफरेंस, अस, मतलब स्किल्स क्योंकि लेवल। स्किल्स हाँ है सबके पास। हाँ अगर आप डर गया, हाँ। तो हो गया आपका स्किल्स का टाइप टाइप फिश। सही है। डरना नहीं, हाँ डराना है, हाँ हाँ। वही वही ये बहुत डिफरेंस। जरूरी है, वो बहुत डिफरेंस, जरूरी है। वो हमारा मेन फैक्टर है हम लोग का यस, नॉर्थ ईस्ट फाइटर्स। और इसलिए ये इसलिए हम लोग अपना हाँ, पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। हम्म, जब मैं किसी के सामने खड़ा रहता हूँ, हम्म, फेस ऑफ करता हूँ, हम्म, उस टाइम पे ही वो डर गया होता है, हम्म, वैसा रहता है। सो हम्म, ऑरा क्रिएट करना। हम्म, मैं ज्यादा बात नहीं करता, हम्म, मेरे को पसंद भी नहीं है ट्रैश टॉक इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अपने आप को मतलब बहुत सुपीरियर दिखाना ये सब। टॉक, आई जस्ट डू, हाँ, मैं काम पे दिखाता हूँ। जो भी दिखाना है रिंग के अंदर, केस यस, के अंदर। यू कम टू द रिंग यस। एंड यू सी द ऑरा दैट या आई या क्रिएट। या ऐसा होना भी चाहिए। इट्स वेरी या इंपॉर्टेंट। या इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब आप अगर नो ज़्यादा थॉक ब्रदर, नो थॉक, ओनली ओनली स्मैश, स्मैश, एग्जैक्टली, ओनली स्मैश। दैट इज व्हाट आई डू। या देखो, एक चीज़ होता है निर्जन, सब लोग को मालूम है कि एवरीवन नीड्स फाइनेंशियल, मतलब सबको फाइनेंस चाहिए। अगर तुम सोचो, यू आर फाइनेंशियली फ्रीडम एंड एवरीथिंग यू हैव, so where do you settle, in mainland India, or you come in Northeast and do your future I thing will come to my home. and I do the cannot leave wrestling? my home. Yes. And
आपने बोका विलेज Yeah, yeah, yeah. सुना होगा, Mm. सपने में आता है मेरा कि मैं भी एक बना सकता हूँ ऐसे, Yes, yes, सकता हूँ ऐसे। yes, yes. Like in Jiribam. Yes, Yeah. Because we have so much potential and we we have have. so much talented fighters अभी here. मैं जो 10 दिन के लिए घर आया हूँ, Mm. घर आते ही मैंने 2 अगस्त को पहुंचा था, मैं 2 अगस्त को पहुंचा था घर पर। Mm. नेक्स्ट डे देयर वाज अ नोटिफिकेशन Mm. जो फेसबुक में किसी ने शेयर किया था, Mm. 3 तारीख को किक बॉक्सिंग का मैच Yeah, yeah, yeah. खेलो इंडिया का चल रहा In है। Jiribam. आई डिडंट नो Mm. बिकॉज आई डिडंट टेल एनीवन दैट आई एम कमिंग होम। Mm. किसी ने मेरे को इनविटेशन नहीं दिया, बट बिकॉज आई लव कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड आई एम डूइंग इट, Mm. चुपचाप ऐसे चला गया, Mm. Mm. देखा, मजा आ गया। Mm. उसके बाद मैंने जो मेरा पहले जब स्कूल में सिखाते थे Mm. जो टीचर थे, हम्म। बसंता सर, Mm. और उनका वाइफ, Mm. उनका नाम हिरोशिमा है, जापानीज Japanese. नेम है, बट उनका नाम सच में हिरोशिमा है। तो उन्होंने वेलकम किया Mm. और मैंने भी थोड़ा सा डोनेट किया उन हम्म। बच्चे लोगों के लिए। Mm. तो अच्छा लगता है कि हमारे जगह में भी ऐसा हो रहा है। Mm. They have more than 90 plus 100 students, Mm. 100 plus students। Mm. तो मैं सोचता हूँ ये लोग कहाँ करता है। Mm. वो सब देख के Mm. मेरे को भी मन करता है कि मैं कुछ करूँ इन लोगों के लिए। Yeah, yeah, yeah. Like हमारा workout. जिरीबाम का एवरेज जो सैलरी पर मंथ होता है, इट्स वेरी लेस, 5,000 to 7,000। Mm. उसके ऊपर का जो Government क्या है? jobs वगैरह करते हैं। हाँ, वो लोग का अच्छा मिलता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल दे आर डेली वेज अर्नर्स और लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन। सो Mm. उनके लिए करना चाहता हूँ कुछ, Mm. जो अभी भी मैं उस स्टेट पे नहीं हूँ कि मैं हेल्प कर पाऊँ, Mm. बट आई ट्राई Yeah, yeah, yeah. एंड किया है मैंने बहुत, Mm. जो भी मिलता है वहाँ से Mm. किया है। हाँ, अभी तो तुम्हारा जर्नी शुरू ही हुआ है, अभी तो But- एकदम। इफ Mm. अगर उसके लिए मैं ट्राई हासिल कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। Mm. इफ आई बिकम रिच, Mm. Financially. आई विल फॉर श्योर create something big Mm. where not only people from my village Mm. but from everywhere will want to come Mm. and train. Yeah, yeah. That is for sure. Mm. You know, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली हम लोग का नोटिस का एक फाइटिंग भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया अच्छा सा वेरी फाइटिंग। इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप दागिस्तान में देखिए, दागिस्तान का दे हैव देयर ओन दागिस्तानी पीपल, वैसा ही हम भी एक Yeah, we can नया produce so many champions from रिवोल्यूशन more. कर सकते हैं। Yeah. हम लोग का टीम से नोटिस का टीम से हम लोग बहुत ज़्यादा चैंपियंस प्रोड्यूस कर Yes. सकते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करके, एक साथ हम रह लोग का के। क्या है ना, आप अच्छा करते हो, हम्म, मेनलैंड से कोई आएगा, हम्म, आपको ऐसा पैसा दिखाएगा, हम्म, आप अपना जो पहले जो गुरु है उसको छोड़ के चले जाओ। हम्म, बहुत ये है, हम्म, यू कैन नॉट ट्रस्ट हम्म, बिकॉज एवरीबडी इज पुअर। हम्म। So Everybody just needs run- money. Yeah, they just run behind money. हम्म, आपको उनको स्टाइपेंड बोलते हैं ना, हम्म, वैसा करके कुछ हम्म, ये करना पड़ेगा। हम्म। अब ट्रेनिंग करने से भी उन लोग को राह दिखाना पड़ेगा कि ट्रेन करो और पैसा कैसा कमाना है। Exactly. इस मतलब इस एनवायरनमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें पैसा कैसा कमाना है, पैसा कैसा तुम्हारा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा होना है, वो सिखाना है हम लोगों को नोटिस Exactly. पीपल को टीम बना के। That is the only reason Yeah, they that's what Khabib is doing with the Dagestani people. Yes. They all are, देखो अभी जितना भी है humble background, they also belong to humble background. They train in hills, mountains. Yes. But now everyone has become rich. इतना बड़ा जिम है खुद का Exactly. इतना बड़ा टीम है,
तो सब लोग अर्न कर रहे हैं, सब लोग फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा एक चीज़ होना चाहिए। ये मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम है। यू आर ऑल्सो नियर आवर होम टाउन, सो अगर करेंगे तो एक साथ करके एकदम यस, बहुत बड़ा। अभी बॉस भी है, और मैंने दोस्त पहले भी बोला था अभिलाष टोंगरम भी है। ब्रांच खोलना है आपको। यस, और हम लोग का जो रोशन भाई नाम भी है, इज ऑल्सो always ready for that kind of thing. Whenever I talk to him, I just share this kind of thing. एक बेस्ट टीम, एक फाइट टीम, सबसे बढ़िया वाला टीम बनाते हैं। इसके लिए हाँ, इसके लिए थोड़ा सभी फाइटर्स को जितना भी है हम लोग से उन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, उन लोगों को ज़्यादातर फाइट करना है, फॉरेन कंट्रीज से आके ट्रेन करना है। Yes. आफ्टर दैट, आफ्टर यू हैव अर्न द एक्सपीरियंस, देन एवरीथिंग, देन वी कैन प्रोड्यूस। तब हम लोग जितना भी हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन है, तब वी कैन प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ थिंग। यस, और यही है, ये माइंडसेट लेके अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग कुछ फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। यस, फॉर दिस जो कॉम्बैट स्पोर्ट लवर है, हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। और जितना भी हम लोग का नोटिस फाइटर्स है जो तुम्हारे पास, बेसिकली जो तुम्हारे पास, बिकॉज किसी का, सब लोग का भी फाइनेंशियल नीड होगा किसी का पास भी, तो अगर वो लोग आना चाहता है बेंगलोर, तो क्या बोलना चाहते हो उन लोग? अगर कोई सोचो, हम लोग का कोई बंदा नोटिस है, अगर आना चाहते हो बेंगलोर, ट्रेनिंग करना चाहता है, या कोई भी, नॉट ओनली ट्रेनिंग, कोई भी अगर कर सकता है, मतलब फॉर कमिंग बेंगलोर जॉब के लिए, कुछ काम के लिए, तो क्या सजेशन देना चाहते हो? जॉब के हिसाब से अच्छा है हम्म, बेंगलोर, हम्म, बट उस आप ये मत भूलो कि वहाँ का लिविंग कॉस्ट भी बहुत हाई है। इट्स हाई। हम्म, यहाँ पे आप जिरीबाम में हम्म, आपको 1 आवर के हम्म, 1000 हम्म, 1500 हम्म, इतने में 1 महीने के मिल जाएगा। हम्म, बैंगलोर में into 10 11,000 10 टाइम्स ज़्यादा। 10,000 हाँ, मिलता है आपको हम्म, 15 हम्म, 20, हम्म, बट आपको खाना है, हम्म, आपको रहना है, हम्म, ट्रैवल करना है, कम्यूट करना है, हम्म, कुछ बचता नहीं है। हम्म। ट्रेनिंग के लिए आप किस लोगों को बुलाना चाहते हैं, मतलब जो जो फुली? ऑलरेडी है, हाँ, हाँ, घर पे पैसा है, हाँ, हम्म, आप आओ, हम्म, देखो कैसा है, एक्सप्लोर फर्स्ट। हम्म, कुछ भी हो, एक्सप्लोर फर्स्ट। इसलिए मैं बोला पैसा वाला जो है, हम्म, एक्सप्लोर फर्स्ट। हम्म, इन्वेस्ट करना पड़ेगा हम्म, अपने टाइम को, अपने पैसे को। हम्म। अगर सोचो तुम्हारे जैसा अगर हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग हुआ, तो क्या करना तो पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, दैट पीपल विल स्नैच यू। मैच्योर फाइटर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। विदाउट एक्सप्लोर, विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इट इज हार्ड टू इट्स हार्ड टू सस्टेन, सर्वाइव, सर्वाइव नहीं, सस्टेन। सस्टेन। आप 1 महीने के लिए आओगे, चले जाओगे, सस्टेन करने के लिए। मतलब आप एमेच्योर हो तो आप छोटा छोटा लेवल से उठना पड़ेगा, यस, लेवल 1 2 3 4 यस, करके, तब जाके आप थोड़ा हाई लेवल में जब आओगे, यस, तब आप यू कैन विजिट यू कैन बिकम अ ट्रेनर। या देयर इज अ वे टू अर्न एंड यू कैन ट्रेन फॉर योरसेल्फ, जैसे हम करते हैं। सो अभी अंतिम वक्त आ चुका है। सो ये पॉडकास्ट का, सो ख़त्म होने से पहले एक मैसेज दीजिए। मैसेज मतलब जितना भी हम लोग का पेरेंट्स, जितना भी मतलब ज़्यादातर हम लोग का होम टाउन का, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट लेवल लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। सो आवर पेरेंट्स जितना भी है इन आवर होम टाउन और योर होम टाउन, जितना हम लोग का एनवायरनमेंट में जितना भी पेरेंट्स गार्जियंस है, सो दे आर लाइक दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर किड्स। इट्स ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये सबसे चिल्ड्रन से गुंडा बनेगा, झगड़ा करेगा, लाइक दैट माइंडसेट। सो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम, मतलब उन लोगों को, मतलब आप क्या माइंडसेट देना चाहते हो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स से इंसान कैसा बदलता है, और इसमें अगर आप अच्छा से हार्ड वर्क करोगे, देन हाउ यू कैन बिल्ड योरसेल्फ दिस जर्नी? क्या मैसेज देना चाहते हो? जी, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि आप मार्शल आर्ट्स सिखाओगे बच्चों को और वो गुंडा बनेगा, इट्स अ मिथ। अगर नहीं सिखाओगे तो गुंडा बनेगा। मैं
That's how I brought up. My mom and dad, Mm, they are very strict. mm, Still they are. But because they are strict, we wanted to become very bad. mm, बहुत सारे stories हैं mm, past में mm, where I used to be an alcoholic. mm, Again, this was my school time. mm, I don't want this to happen to my younger brothers and sisters. But again, I was good in sports. जहाँ पे मेरा स्कूल था, दी हाईवे इंग्लिश स्कूल, mm, वहाँ पे जब भी स्पोर्ट्स होता था, एनुअल स्पोर्ट्स, मैं एक साल का मेरा और छोटे भाई का जो एक्सरसाइज बुक रहता है, छोटा छोटा, mm, 10 रुपये 20 रुपये, mm. वो नहीं खरीदता था, बिकॉज आई यूज टू गेट इट ऑन लाइक स्पोर्ट्स डे में मिल जाता स्पोर्ट्स प्राइजेस में एज प्राइस, आई यूज टू गेट इट। Mm, वैसा था मैं। mm, कबड्डी में स्टेट लेवल में फ्रॉम स्कूल इंटर स्कूल सेलेक्ट करके मैं गया था खुमन लंपाक मणिपुर में जो स्टेडियम में, मणिपुर। इम्फाल में वो सब हुआ है। बट आफ्टर माय 9th standard, my dad became very very strict, Mm, and because of that, I was like, okay, if you want to be strict, I'll also show you. So that mm. attitude, Yeah, that yeah. ego builds एक up. एडोलेसेंट पीरियड जब होता है Yes, तब yes. एक आ जाता है मतलब Teenage. इंसान का या उस टाइम पे मैं बहुत खराब बच्चा था, बिगड़ा हुआ बच्चा था। बिगड़ा एनवायरनमेंट में चला गया था। Yes, Mm, I was a good student. I was not a brilliant student, but I was a good student. But because वो सब शुरू हुआ, mm, 10 पढ़ाई से मैंने दूर किया mm, अपने आप को, mm, और ज़्यादातर दोस्त के साथ इधर घूमना उधर घूमना, चिल करना। स्मोक करना, Mm, चिल करना, mm, वो सब करने लगा। इसलिए मेरा जो HSLC है, mm, वहाँ पे अच्छा नहीं आया मेरा मार्क्स, mm, क्योंकि मैंने पढ़ाई के बजाय मैंने कुछ और किया। mm, जब मैं कॉलेज में आया, mm, तब मैंने मार्शल आर्ट्स शुरू किया। mm, उसके बाद मेरा ज़िंदगी बदलने लगा। आई बिकेम मोर डिसिप्लिन देन आई वाज। ज़िंदगी में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी करूँगा, mm, बट आई एम grateful and I am happy that I did it and I'm still pursuing it. It's all thanks to the people who influenced me to this very path. mm, So, a clear message mm, for the parents. It's not about your child wants to do martial arts, but they should try at least one form of martial arts. Either it can be MMA, it can be karate, it can be kung fu, it can be boxing, kickboxing, or it can be any other sports. mm. Not only Any- martial arts. Not just only martial arts, any other sports. कोई भी activities. Mm, Activities मतलब जो आपका body involve होता है, mm, उसमें आप ट्रेनिंग दो उनको। mm, ट्रेनिंग सेंटर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, mm, भेजो वहाँ पे 1 घंटे के लिए, mm, तो अपना बॉडी जो है उसमें डेवलपमेंट आएगा। mm, जो 1 घंटा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना, वो 1 घंटा बाद में mm, जो बच्चे हैं उनका साल 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 बचाएगा। mm. और जस्ट लाइक कि आपको सिर्फ पढ़ाई 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 करना नहीं, है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ Yes. पढ़ाई से नहीं होता है। Mm. एक्स्ट्रा क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज क्योंकि बहुत लोग बच्चा है, आइंस्टाइन ने भी बोला था, यू कैन नॉट जस्ट फिश to tell the fish that to just climb the tree. Yeah. Fish cannot climb the Cannot. tree. आप मंकी को नहीं बोल सकते कि फिश के जैसे आप डुबकी मार के स्विमिंग करो। एग्जैक्टली। तो वही है, सब बच्चा समान नहीं है। नहीं, उस बच्चे everybody का- is different. Yeah, yeah, They have to explore first. Mm, They have to try it out first. mm, उसके बाद वो जो अपना mm, पसंदीदा चीज होगा ना, उस पे वो अगर पुश करता है तो he will become something. mm, अगर आज मैं MMA नहीं किया होता mm, तो पूरा इंडिया नहीं जानता कि मैं कौन है। yes. Mm,
अलग से अब्रॉड में या कोई में कोई एक चपरासी का नौकरी Exactly. करके Yes. अलग से एनवायरनमेंट अलग से दुनिया में रहता है। Yes, that is true. Yes, अलग से एनवायरनमेंट अलग से दुनिया में रहता है। Yes, that is true. Yes, for this तो for ये कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं तुम्हें हाँ. फेम दिया है Yes. जितना भी अभी तुम हो Yes. दिस ओनली फॉर दिस कॉम्बैट स्पोर्ट। Yeah. Coming back to the message, give your child uh, uh, a chance, an opportunity to explore and to see what they like. पढ़ाई भी करवाओ साइड में, प्राइमरीली पढ़ाई है जब तक उनका 18 इयर्स जो भी कैप वो नहीं आता है तब तक, बट साइड क्वेस्ट्स वो भी डालना है। क्रिकेट खेलता है गुड, फुटबॉल खेलता है गुड, मार्शल आर्ट्स करता है गुड, कोई भी एक्टिविटीज आप करवाओ। जो स्किल है ना वो इट विल नॉट गो इनटू वेन। जैसे आज मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए बड़े बड़े आईटी में सेक्टर में जो काम करते हैं वो लोग आते हैं मेरे जिम में। सम आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी, सम आर VCs इन द कंपनी। उनके लेवल में मैं नहीं पहुंच सकता, बट मेरे स्किल के लेवल में वो मेरे पास मतलब मेरे तरह अभी तक नहीं पहुंचा है। सो दैट्स व्हाई दे कम टू लर्न फ्रॉम मी। आज मैं पैसा कमा पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव दैट स्किल विच इज माई मार्शल आर्ट्स। तो एक स्किल बेस्ड चीज का ट्रेनिंग दो। इधर इट कैन बी ढोलक बजाना, वो भी एक स्किल है। आप पार्ट टाइम बैंड में जा सकते हो, ऐसा मिलेगा। तो मैसेज बस इतना है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाओ बच्चे को। अगर वो चाहता है मेरे को आर्ट पेंटिंग ड्राइंग वहाँ पे जाने दो उनको। और लास्ट मैसेज तुम्हारे तरफ से, तुम्हारा क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? कोई फाइट है या क्या है? और जितना भी तुम्हारा फैंस जो तुम्हें देख रहा है उन लोगों को क्या बोलना चाहता हो? बहुत लोग मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं कि भैया आप MFN क्यों नहीं जाते हो, MFN क्यों आप नहीं जा रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो वहाँ पर। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आई एम प्लानिंग टू गेट एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ रिकॉर्ड वेयर आई कैन like send a proposal to Road to One or Road to UFC, so that I can fight. See, Indian level also international level में हमारा इंडिया का अपना MFN बहुत अच्छा कर रहा है। बट अल्टीमेटली जो मेरा गोल था जब मैंने शुरू किया था ये, my ultimate goal was to go into the UFC or one championship, right? So मैं I don't want to divert myself from my goal. That is why I'm not going into MFN. If I get one fight contract, for sure I will accept it, but I cannot be bound by a contract, a long-term contract. That is why I am not fighting in MFN, and that is why I am fighting one pro fights, two pro fights. I mean, like once contract, so that I can build my record, my career, and send a proposal to Road to UFC, so that I can be in their promotion. And once I become a UFC fighter, after that, so it's more. तो जर्नी चलता रहेगा। It's the ultimate journey. It's the ultimate journey. It will be very proud for us also because from notice से जितना भी कमी है, अभी सिर्फ इंडिया से भी सिर्फ वन है जो अंशुल जुबली है, everyone knows him. Guys, मैंने मेडुल साइकिया के साथ भी फाइट किया है। That was back then when I didn't know MMA. उसने मेरे को ट्रायंगल चोक में सबमिट किया था। Again, kudos to him, but उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था। And Medul, if you are seeing this,
एंड एनी मिडल का जो भी ये है टीममेट्स है, अगर आप देख रहे हो वीडियो को, तो मिडल इफ़ यू वांट टू रीमैच अगेन विथ मी 61 kg में फिर से, Mm, and please reach out mm, to me, or you can reach out to my manager Amitas Suraj. mm, इंस्टाग्राम पे ही होगा mm. वैसे सेम नाम पे, सो यू कैन रीच आउट whether we can again have a great fight. So yeah, sorry, it's a side. Yeah, it's a healthy challenge. Healthy I fought with him, yeah, and I want to fight him again Mm. because that time I was not properly trained in MMA, Mm, but this time I think I'm fully prepared. mm. Not I think I am fully prepared. जब बिदांग में क्लब वॉर हुआ था तब फाइट किया था गाइस। Yes, बहुत पहले का फाइट, I बहुत think पहले in 2020, आई थिंक 20 और what 20 1920 before I went to Imphal. या उस समय का बात था। 2020. ओके That was my 2 years losing phase. या मतलब स्टार्टिंग का जर्नी था मतलब 1920. या सब फेलर से ही शुरू होता है। फेल करते ही सब डेवलप होता है। सो गाइस हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गया इस पॉडकास्ट का। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो। आप लोग लव एंड सपोर्ट कीजिए। हम लोग का जितना भी फाइटर्स है, जितना भी एमएमए फाइटर्स है, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए और निरंजन को भी सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा बहुत पॉडकास्ट अभी लेके आऊँगा। नॉट ओनली फाइटर्स, आई विल टॉक विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन माय पॉडकास्ट। इन डिफरेंट लोग के साथ बात करूँगा, डिफरेंट नॉलेज शेयर करेंगे हम लोग, स्पेशली फ्रॉम आवर होम टाउन एंड फ्रॉम नियर बाय आवर होम टाउन। तो उन लोगों के साथ बात करके हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे। So thank you everyone for watching the video. Please give your blessings and love and support. Thank you everyone again. Thank you. Thank you.